ये भीमराव सर आ गए। गया। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning. मॉर्निंग सर। Wait for few seconds. बाकी बच्चे किधर है बेटा? Why less student? I don't know. कमिंग सर, सर धीरे एवरीवन धीरे इज ज्वाइन करेंगे। But सर Timing- आधे जन आएंगे थोड़ी थोड़ी देर में, अभी 5-10 मिनट में आना शुरू कर देंगे वो। It will take 5 to 10 minutes to join everyone. anyways, So, Oh my God. Really? सर आप कंटिन्यूअस 2 लेक्चर लेने वाले हो? oh, 15-minute break there. Not there at home. बेटा मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ। वैसे भी तुम लोग मैं तुक्को पाउडर। ठीक तो है? हाँ मतलब सर, कंटिन्यू ही रखो वरना सब चले जाएंगे छोड़ के। डिपेंड्स अपॉन, देखते हैं, अगर ब्रेक मिल गया तो ब्रेक दे दूंगा, ठीक है? सर ओके, दे दूंगा, डोंट वरी, रिलैक्स। कंटिन्यू कर दो तो हमें अगले लेक्चर के लिए ज्यादा ब्रेक मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है। नाउ वेयर वी यस्टरडे, कहाँ तक थे हम लोग? स्टूडेंट सर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तक पढ़ा था। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ये हुआ था, ठीक है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ना, पे अटेंशन, जो भी है उसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्लियर? नाउ if you have query then ask, otherwise we'll go ahead. Okay, we are discussing about method of charging. There are two method of charging. Okay, one we call as conduction and one we call as induction. Conduction and induction. Now pay attention what exactly it is, and with the help of diagram they have explained also. So first we'll read the statement. When an uncharged body is brought to into contact, okay, contact means touch, with an charged body, then the charge or the electron are transferred from the charged body to the uncharged body. This charges the uncharged body. It means what? हमारे पास कोई भी एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन वाला कोई एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, लाइक दैट इन फर्स्ट डायग्राम वी हैव अ charged body, okay, or that body we are contacting to a neutral body, or those we are opposite charge, okay, that body we are contacting. So whatever the excited electron, that will be get contact and they are transferred from higher level to lower level. So वो जो भी charger body थी उसके पास बहुत excessive electron थे, so we are touching to the another body, that's why they are flow from one to another point. So we are with the help of charging body, with the help of charging body we can give charge to the neutral body, or those who are not have charge, for that them we can give a charge, and with the help of this method we can do the charge. Okay, till here any doubt? Now next what we have, sorry, next is induction method we have to discuss. Previous one, what your conduction, this is your induction method. We have to understand induction method also. Induction method means what? Here the induction process, a charged object is brought near but not touched to the neutral conducting object. The presence of charged object near the neutral conductor will be polarize the charge within the conductor. Now student यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम समझो ना, pay attention. A and B is a charging body, okay, neutral body. A neutral body मतलब उसमें equal proton है और equal neutron है, ठीक है? अभी इक्वल प्रोटॉन और इक्वल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो अंदर रहते हैं, बट हम लोग बात करें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, ठीक है? लेट्स कंसीडर अ बॉडी व्हिच इज वी हैव समझो 24 इलेक्ट्रॉन है और 24 प्रोटॉन है, टोटल एक न्यूट्रल बॉडी पे, वो ए बी एक ही बॉडी है पूरी। क्लियर? नाउ वी विल डू व्हाट, we have a one electronegative charge body, that is your red color body, okay? So red color body we are close to the
ए बी ऑब्जेक्ट के क्लोज में हम लोग ने किसको लाया है, रेड कलर की बॉडी को। अभी इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम लोग ने टच नहीं किया प्लीज, पहले मेथड में हम लोग टच कर रहे थे तो कंडक्शन हो रहा था, नॉट वी आर डूइंग व्हाट, हम लोग टच नहीं कर रहे, सिर्फ क्लोज रख रहे हैं, उसके क्लोज में रख रहे हैं, उसके प्रेजेंस में रख रहे हैं, ताकि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन के अंदर का, जो चार्जिंग बॉडी है, वो फोर्स का इम्पैक्ट कहाँ पे गिरेगा, वो फोर्स का इम्पैक्ट तुम्हारी न्यूट्रल बॉडी, जो ए बी न्यूट्रल बॉडी उसके ऊपर इम्पैक्ट गिरेगा। जिसकी वजह से हो क्या जाएगा, जो तुम्हारी ए बी बॉडी में जो चार्ज, जो भी तुम्हारे पास 24 इलेक्ट्रॉन और 24 प्रोटॉन है, अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिपल्शन हो जाएंगे। तो बी बॉडी जो है उसके ऊपर देखो अपोजिट साइड में, जहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड जो रेड कलर बॉडी है, उसके अपोजिट में बी वाले चार्जेस है, मतलब रिपल्शन हो गया। और जो अट्रैक्ट करने वाले वो क्या हो गए, ये ए बॉडी के क्लोज में ये साइड, रेड बॉडी के क्लोज में आ गए। इट्स मींस व्हाट, नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहे हैं और नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन हो रहे हैं। तो अपने आप मटेरियल के अंदर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्प्लिट हो गए, स्प्लिट होने मतलब पोलराइज हो गए। तो दैट मेथड इज नथिंग बट इंडक्शन की सर आवाज कट रही है आपकी। प्रेजेंस ऑफ चार्जिंग बॉडी, सिर्फ चार्जिंग बॉडी के प्रेजेंस की वजह से मटेरियल के अंदर के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होना, पोलराइज होना, दैट इज नथिंग बट इंडक्शन। बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझ लेना कि वो दोनों मतलब एक ही मेटल में रहेंगे, तो एक ही मेटल बॉडी पे तो टोटल बॉडी न्यूट्रल ही रहेगी, टोटल उसकी वैल्यू न्यूट्रल ही रहेगी। और अगर हम लोग सेपरेट करेंगे ये भी, तो दोनों अलग अलग चार्ज से, जैसे हम लोग ने अगले डायग्राम में देखा, दे बोथ विल बी गेट स्प्लिट, और अलग अलग चार्जिंग हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गया, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी। दैट वे विल डू इंडक्शन। सर नहीं समझ आया। बेटा सिंपल है, मैंने क्या बोला ध्यान दो। समझो हमारे पास चार्जिंग ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या बोला, मेरे पास एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन वाला रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है रेड कलर ऑब्जेक्ट, सेकंड डायग्राम देखो, ठीक है। अभी ये ऑब्जेक्ट हम लोग ने किसके कांटेक्ट में लाया, हम लोग ने ए बी जो टोटल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाया। तो ए बी के ऊपर जो ए और बी, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है, इनके ऊपर टोटल हमारे पास 24 प्रोटॉन और 24 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कोई भी बॉडी, या फिर इसकी जगह पे हम लोग ने एक मेटल शीट ले ली, एक मेटल शीट ले ली, मेटल के ऊपर जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, करेक्ट, ठीक है। अभी ये जो अंदर के मटेरियल स्प्लिट क्यों हो रहे हैं उसका रीजन बता रहा हूं। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन क्लोज लेके आया, तो मुझे बताओ जो मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन और अंदर के इलेक्ट्रॉन, बाहर के इलेक्ट्रॉन का फोर्स, जो मैग्नेटिकल फोर्स कैसा रहता है, मैग्नेट अपना मैग्नेटिकल फोर्स अप्लाई करता है, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड चार्जिंग बॉडी वाले इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब वेरिएशन वाला मैग्नेटिक वेव, वैसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपने आप इंपैक्ट करेगा। फोर्स हो विद द प्रेजेंस, सिर्फ क्लोज रखने की वजह से उसका फोर्स कहाँ पे, मेटल के अंदर पे जाएगा, जो मेटल जो तुम्हारी बॉडी उसके अंदर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से अंदर के मटेरियल के इलेक्ट्रॉन है वो जो साथ में थे वो क्या हो गए, अरे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन और अंदर के इलेक्ट्रॉन दोनों में रिपल्शन हो गया। तो रिपल्शन हो जाएगा तो वो अपोजिट दूर फेंके जाएंगे, तो वो दूसरी ओर दौड़े, जहां पे तुम्हारा नेगेटिव वाला बॉडी है उसके अपोजिट साइड में, कहाँ पे, बी वाले साइड में फेंकेगा, तो अट्रैक्ट कौन से हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले। तो पॉजिटिव वाले ये साइड आ गए, नेगेटिव वाले वो साइड आ रहे, और ये स्प्लिटिंग होना, ये पोलराइज होना, इसी को हम लोग इंडक्शन मेथड बोलते हैं। समझा कुछ? हाँ सर। जो ना यस सर। सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ हम लोग यस सर। जैसे मैग्नेट की वजह से ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है, सिर्फ मैग्नेट क्लोज रखते हैं, तो वैसे ही चार्जिंग बॉडी सिर्फ हम लोग ने क्लोज रख दी, किसके, न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में। तो न्यूट्रल बॉडी मतलब जिसके ऊपर इक्वल प्रोटॉन और इक्वल न्यूट्रॉन रहते हैं, वो बॉडी के पास हम लोग ने रख दी। तो इक्वल प्रोटॉन और इक्वल न्यूट्रॉन वाले अपने आप स्प्लिट अप क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे में एक नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, तो जो एक दूसरे के अपोजिट में टर्म होके दोनों एक दूसरे से पोलराइज हो रहा, स्प्लिट होता अंदर मेटल के अंदर, वो बाहर नहीं आया, अगर वो बाहर आते तो कंडक्शन हो जाता। समझ आ रहा है, बाहर नहीं है, जो बॉडी के क्लोज में रखे वो बाहर नहीं आए, वो सिर्फ प्रेजेंस में है और बॉडी के ऊपर ही है, लेकिन बॉडी के ऊपर भी रह के, मतलब जो अंदर जो मेटल के क्लोज लाया उसके अंदर ही है, लेकिन अंदर स्प्लिट हो गए, वो बॉडी के बाहर नहीं आए। अगर बॉडी के बाहर आते तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो ये इनसाइड द बॉडी splitting phenomena, that is your induction method. Quit out. Okay, we'll No move on to sir. next slide. No, sir.
Now we are discussing what is the electricity. Now pay attention. As we know already, we have discussed electricity is nothing but is a form of energy. और electricity क्यों energy है? क्योंकि charge की property we have discussed. Charge is conserve. Charge conserve मतलब charge energy के rule सभी के सभी energy के concept बता रहा है. तो charge अगर energy के concept बता रहा है तो electricity भी क्या है? Charge ही है ना. Flow of charge that is nothing but electricity. That's why we are saying here electricity is a form of energy that can be easily changed to many other form. और electricity के form हम लोग change करते हैं, जो कि हम लोग ने नीचे example Venn diagram में दिखाया कि हम लोग अलग अलग एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं. दैट इज फर्स्ट. अगर तुम लोग ऑब्जर्व करो तो इलेक्ट्रिसिटी इन फॉर्म ऑफ मोशन एंड पावर. जहाँ पे हम लोग को मालूम है ड्रिल मशीन, जहाँ पे ड्रिल का पॉइंटर रोटेट होता है, कार का ब्लेंडर है, मोटर है, ये सब मोशन वाले करने वाले इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग इससे इन सब ऑब्जेक्ट के मोशन कराते हैं. सेकेंड पॉइंट में देखो तो वी हैव विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट डेवलप कर रहे हैं. ठीक है, हीट के साथ हम लोग कूलिंग इंपैक्ट भी कर रहे हैं. तो हीटिंग एंड कूलिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट आल्सो हैपन. आल्सो लाइटनिंग फॉर्म ये भी करते हैं. आल्सो कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन मोबाइल है कम्युनिकेट स्प्लिट कर रहा है, रिसीवर है. ठीक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों फॉर्म हमारे मोबाइल से हो रहा है. कंप्यूटर है, लैपटॉप है जो तुम लोग यूज कर रहे हैं करंट में. दीज आर ऑल equipment with the help of electricity. We are doing this all term. Okay, now move towards the next part. Next part, what we have, what is electrical current? What is electrical current? We have to discuss about this term. Now pay attention. Exactly electrical current क्या है उसी की definition we are discussing here. It is the rate of flow of electrical charge through a conductor. Simple definition है, simple statement है. The rate of flow of electrical charge or electron. The rate means क्या? Rate means it's a ratio of what? Time. So that's why they have mentioned rate of flow of electrical charge through the conductor. या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि flow of charge with respect to time. Rate word निकाल दो और with respect to time लगा दो तो भी चलेगा. या फिर rate of flow of charge with through the conductor. और ये चार्ज मतलब ही चार्ज कौन से हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बट उसमें से एक्चुअली फ्लो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन कभी फ्लो नहीं होते. we'll discuss in next मतलब इसी के पॉइंट में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं. प्रोटॉन विल बी ऑलवेज स्टेशनरी. ठीक है, नाउ उसी के ऊपर टर्म हम लोग डिस्कस करें. दैट टर्म व्हाट वी नो, I is equal to Q by T. what we know, I is equal to Q by T. तो डेफिनेशन के टर्म से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट इज Q विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट्स व्हाई I is equal to Q by T. और हम लोग ने पहले चार्ज का क्वांटाइज का फॉर्मूला याद है, Q is equal to NE. दैट्स व्हाई they have modified the formula. I is equal to NE by T. Q की जगह पे NE डाल दिया है with respect to time. Okay, so where I stands for current. Now current को हम लोग कैसे सिंबल से, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल I से. करंट को हम लोग सिंबलाइज कैपिटल I से करते हैं. क्लियर? नाउ लुकिंग टू मोर कंसेप्ट. अभी इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ फिजिक्स में बेटा देयर आर एन नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स, मास. ये सब सभी के सभी जो मेजर करते हैं हम लोग, जो फिजिकल क्वांटिटी जो टर्म है, इंटेंसिटी, एनर्जी, ये सभी के सभी वर्क डन, ये सब के सब क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है. और ये फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिफरेंस करते हैं. मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी समझने के लिए उनके डिफरेंस बिटवीन की है. जैसे हम लोग बायो में एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम वगैरह वगैरह ऐसे जैसे स्प्लिट अप करते हैं. इन सिमिलर मैनर फिजिक्स में भी जितने भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी दो टर्म में स्प्लिट अप होती है. एक टर्म को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरे टर्म को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. समझ आ रहा है? तो स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, वो सिंपल टर्म में समझा रहा हूँ. बहुत बड़ा मतलब कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं. इट्स अ सिंपल कंसेप्ट. तो जो भी क्वांटिटी जितनी भी फिजिक्स की क्वांटिटी वो दो क्वांटिटी में स्प्लिट अप होती है, स्केलर और वेक्टर. बार बार तुम लोग हायर लेवल तक भी फिजिक्स पढ़ो तो हर फिजिकल क्वांटिटी को दो टर्म में स्प्लिट अप करते हैं. दैट इज व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर. अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी? एग्जांपल बता रहा. स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी वेयर इट शोज ओनली मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ वैल्यू बताती है. कि समझो मैंने बोला करंट, तो करंट कितने एम्पियर का है, इतनी वैल्यू बता रहा है. करंट और कोई हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है, सिर्फ वो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट क्वांटिटी इज व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी. बट वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वेयर मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू तो है और वैल्यू के साथ कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दिखा रहा है. वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो होती है वो मालूम है.
या फिर ऐसे ही पैटर्न में वो फ्लो होता है, वह ऐसे ही सिस्टम में चलता है। अगर मैं बोलूँ वेट, तो वेट बेटा हम लोग डाउनवर्ड ही मेजर करेंगे, जो वेट मशीन होगी कैसी भी होगी तो उसके ऊपर प्रेशर डाल, तो वेट की एक फिजिकल डाउनवर्ड कंडीशन हो गई। या फिर फोर्स, जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो फोर्स भी क्या होगी, स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो जिनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है, जो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली अप्लाई करेंगे, मतलब उसकी वैल्यू तो मेजर करते हैं, फोर्स किस में मेजर करते हैं, न्यूटन, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी फिक्स हो गई ना, जहां पे लगा उसी डायरेक्शन में गया। तो जो स्पेसिफिक डायरेक्शन बताता है एंड मैग्नीट्यूड बताता है, दैट ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिकल करंट इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। तो कोई बोलेगा सर हम लोग मेटल की वायर में देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल करंट एक ही डायरेक्शन में जाता है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि करंट के लिए करंट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर नहीं। बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ये स्केलर है हम लोगों को समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। समझो हमारे पास एक मेटल शीट है, मेटल की बॉडी है, ठीक है। अभी मेटल के बेड बॉडी में मैंने करंट फ्लो कर दिया, तो क्या करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो जाएंगे? बेटा मेटल के बॉडी में करंट रैंडमली कहीं पे भी फ्लो हो सकते हैं, सभी डायरेक्शन में फ्लो हो सकते हैं। अब तुम लोग बोले सर वायर में फिर ऐसे कैसे हो रहा है? बेटा वायर में होने का रीजन ये है, वायर हैव पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एनर्जी का कंसेप्ट है, लाइक एनर्जी हाई टू लो की ओर दौड़ती है, एनर्जी कभी भी हाई टू लो की ओर दौड़ती है। तो वायर में इतने सारा पोटेंशियल है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक दूसरे से रिपल्स कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने की वजह से वो एक ही डायरेक्शन में, कोई पीछे से कोई फोर्स लगा तो उसी डायरेक्शन में दौड़ोगे ना, क्लियर बाय पॉइंट। तो वैसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो पावर ऑफ स्टेशन से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, एक दूसरे को पुशअप करते जा रहे हैं। और एनर्जी का रूल है कैसे कि इट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, तो जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे दौड़ेंगे, लो की ओर। तो जहां वायर में जहां से इलेक्ट्रॉन जहां से आ रहे हैं वहां पे हाई इलेक्ट्रॉन है, और जहां पे स्पेस अवेलेबल है वहां पे लो की ओर दौड़ रहे हैं, इसके लिए वो ओनली वन डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। वही वायर 3-4 जगह पे कनेक्ट होगा तो वो उस सभी पॉइंट पे वहां पे भी दौड़ेगा, मतलब वहां पे अभी स्पेसिफिक डायरेक्शन आ गई क्या? एक ही वायर को मैंने क्या? कनेक्शन दे दिया और 4 कनेक्शन से भी वो करंट वो फ्लो, अलार्म थी, वो तो फोन से फ्लो कनेक्टेड नहीं है, वो घड़ी की अभी स्प्लिट होती है। डायरेक्शन फ्लो हो गया। मेटल शीट में अगर मैंने अलार्म तो मेरी आती है, Music system is turned off. बोलो, वो मैं बंद करना भूल जाता हूँ रोज सोने से पहले। म्यूट योर माइक शिवांश म्यूट कर माइक को। शिवांश। माइक वगैरह बंद कर दो, कुछ क्वेरी हो तो ही माइक चालू कर दो, अदरवाइज इट विल बी मेक अ एरर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ओके, नाउ शिवांश स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी सबको समझ आ गया। बेटा ये क्यों एक्सप्लेन किया, बिकॉज बार बार ये टर्म तुम लोग फिजिक्स जब तक पढ़ोगे तब तक ये बीच बीच में फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टर्म इट विल बी अकर, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली ये क्या है, वो समझाने के लिए मैंने समझा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, दैट वी कॉल एज स्केलर, और वेक्टर जो वैल्यू के साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बताती है, दैट ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी। तो कहीं कहीं पे वेक्टर भी है, विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, now move towards our next part what we have, it's SI unit is what, coulomb per second or ampere। तो SI यूनिट मतलब स्टैंडर्ड मेजरमेंट वैल्यू। अभी मुझे बताओ हम लोग डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में? डिस्टेंस वी आर मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मीटर। अगर स्टैंडर्डाइज यूनिट बोलेगा तो क्या हो जाएगा, मीटर, करेक्ट है। सिमिलरली और अगर हायर यूनिट रहेगा डिस्टेंस का तो किलोमीटर, लोअर यूनिट रहेगा तो सर बोलेंगे मीटर का तो सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर का तो मिलीमीटर हो गया। लाइक दैट वे वी आर डिस्कसिंग अबाउट करंट। करंट स्टैंडर्डाइज यूनिट व्हाट वी हैव, एम्पियर। एकदम स्टैंडर्डाइज यूनिट क्या है, एम्पियर। जैसे मीटर था वैसे स्टैंडर्डाइज यूनिट इज एम्पियर। अभी करंट अगर लो फ्लो हो रहा है तो लो मेजरमेंट भी होगा, हाई होगा तो हाई मेजरमेंट भी इंस्ट्रूमेंट भी होगा। तो मेजरमेंट यूनिट में इफ वी हैव लोअर करंट फ्लो दैट वी आर मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मिली एमीटर, और उससे और एकदम लो हो रहा है तो दैट वी टर्म्स ऑफ मेजर इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एमीटर। तो अभी इसकी वैल्यू क्या है लोअर में अगर बोला है, लेट कंसीडर 1 मिली एमीटर। 1 मिली एमीटर को अगर हमें मॉडिफाई करना है एमीटर, दैट इज नथिंग बट 1 मिली एमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ एमीटर। मतलब इतने जीरो लग जाएंगे, 0.001 एमीटर। ये हो जाएगा तुम्हारा 1 मिली एमीटर, लाइक दैट। वही अगर हम लोग को और लोअर कर दिया, बोला और करंट बहुत कम फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बहुत कम भी फ्लो हो सकते हैं, क्योंकि चार्ज है वो थोड़े से भी फ्लो हो सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्लो हो सकते हैं, बहुत हाई एक्सेसिव भी हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन मेजरेबल वैल्यू हम लोग लोअर में भी, तो माइक्रो मींस व्हाट, 10⁻⁶ एम्पियर। बट आई से
1 माइक्रो दैट इज नथिंग बट 10⁻⁶ एम्पियर, और उससे नीचे भी होते हैं नैनो 10⁻⁹, उतना नीचे नहीं आता, बट एक जनरली माइक्रो। कभी कभी न्यूमेरिकल में दे में भी गिव 200 मिली एम्पियर। तो 200 मिली एम्पियर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर, क्योंकि 200 को डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो इट बिकम 2, और वही वैल्यू कैलकुलेशन में करना है। बहुत सारे बच्चे मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट नहीं करते एंड आंसर गेट रॉन्ग। सो प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मिली एम्पियर एम्पियर। और कभी कभी किलो एम्पियर भी होता है, के एम्पियर मींस व्हाट 1000। okay, k is nothing but 10⁻³ और 10⁻³ is nothing but what we know 1000. okay, so max 1000, that much amount of current can be flow, higher unit lower unit. okay, till here any doubt for ampere current measure in terms of ampere? No na? Now move towards our next part. It is a measured by a device that we call as ammeter. ये जो करंट है जो डिवाइस से मेजर करते हैं, what are the device that is nothing but ammeter. In ammeter actually we have a thin coil, thin sensitive magnetic coil, and whatever the current flow due to which magnetic field, magnetic impact occur, and due to what amount of agar maximum amount current flow, maximum magnetic field impact happen, and due to which the pointer of scale that will be glow increase like from 0 to 2 4 5 10 ampere like that way. तो अंदर जो पॉइंटर होता है वो जितना करंट फ्लो होगा वो हिसाब से अंदर की मैग्नेटिक कॉइल, थिन सेंसिटिव मैग्नेटिक कॉइल, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उस हिसाब से पॉइंटर विल बी गेट इंक्रीजेस. So that way we are measuring ammeter like that way. Okay, we'll discuss abhi nahi hai deep, we'll discuss later on. Okay, now move towards the next part. Its direction is taken opposite to the flow of electron. Now current direction. Now here you have to understand what all we know, electron are flow from where? Electron are flow from negative to positive. Now tell me that proton flow from positive to negative, is it or not? Or either proton are stationary? What do you say? What do you think? So Student? protons are stationary. Protons are stationary. Good. That's Protons a are correct answer. stationary. Always remember protons are stationary. Proton will be remain safe. The thing is that only electron, whatever the excited charge, they are moving in the circuit. Okay, and proton, whatever we have cell, whatever we have material, they are stationary. So electron move from negative to positive, and when they reach to the proton and inside the atom there, then proton and neutron get satisfied, and when they get satisfied with that term, there will be energy will be released, and that energy releasing concept is nothing but flow of your glow of your bulb, glow of your LED. Like take a simple example, I have a circuit. Okay, one circuit, in that circuit I have one LED bulb. Okay, and we are connecting across to the cell. Okay, now cell have negative point, cell have positive point, and we have wire and bulb. Now understand the concept. Suppose electron are moving from negative point, they are moving through wire that connected to one part of the bulb, from bulb to second part of the bulb, from second part of the bulb to wire. Till here, if I did not contact the second point, the wire point that connected to the positive side of the bulb, if I touch, then only bulb go. If I did not touch, so bulb will be not go. It means what? Electron ने तो circuit पूरा complete करा, but electron positive proton के contact में आया है क्या अब तक? If it is get touched, then only energy will be get released. It means what? It's a matter energy. इलेक्ट्रॉन जब अंदर प्रोटॉन के अंदर जाते हैं तो एक दूसरे के अंदर के डिफ्यूजन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, और वो एक्साइटेड फॉर्म में एनर्जी रिलीज होकर जो भी एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी बट इज मटेरियल एनर्जी मतलब इनसाइड द प्रोटॉन्स एनर्जी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइशन करके जो भी उनका अंदर का मास रिड्यूस हो जाता है, मटेरियल मास गेट रिड्यूस डिस्ट्रॉय, और वो फॉर्म में हमें क्या मिल जाता है? लाइट विल बी ग्लो. अभी इसका एग्जांपल तो बोलो सर कैसे मास कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है? बेटा टेल मी दैट मास मींस व्हाट? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो मुझे बताओ इसमें आइदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कोई तो एक टर्म डिस्ट्रॉय हो रहा है, और वो एक टर्म डिस्ट्रॉय होने की वजह से ही लाइट ग्लो हो रही है. और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा सेल. अगर सेल में हम लोग देखेंगे तो वी नो दैट इन सेल केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन,
एंड केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, तो केमिकल रिएक्शन में एक्साइटेड एक दूसरे के कॉपर सल्फेट रहेगा, जिंक सल्फेट रहेगा, या फिर जो भी हमारे पास फेरस रहेगा, इन दोनों के कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक पार्ट से फ्लो के दूसरे पार्ट पे आते हैं और पूरा सर्किट फ्लो होके हो जाता है, फिर से इनसाइड वो प्रोटॉन के आ जाता है, और ये केमिकल रिएक्शन। अभी मुझे बता केमिकल रिएक्शन में क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है? केमिकल रिएक्शन में मास ही कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तुम्हारे न्यूट्रॉन ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, न्यूट्रॉन की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म ही हो रहे हैं। So at the end, energy, whatever we get electric energy, that is nothing but from positive charge. That is nothing but from positive charge. जो इलेक्ट्रॉन जो हमें एनर्जी मिल रही है, that is nothing but positive charge. जो material energy, it is nothing but. Okay. Till here, any doubt? It's a material energy. ये material energy का ही concept है. Okay. That's why ये material energy का है, तो current की direction फिर यहाँ पे उन्होंने कैसे बताया? Current ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव के चार्ज की वजह से, रिड्यूस होने की वजह से ही करंट एक्चुअली एनर्जी कर दे रहा हो रहे हैं, बट फ्लो कौन हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। सो दैट्स व्हाई दे से द कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट मतलब हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला करंट। द करंट सर्किट में कैसे फ्लो होता है, वी आर कंसीडरिंग दैट वे। द कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन आर फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। टिल हियर रीड आउट स्टूडेंट? No, sir. So current flow from where? Positive to current Negative. from Positive to negative. electron are moving from negative to positive. That concept derive here. Okay. Now the next one, its flow as a result of potential difference across the ends of the conductor. As we know, the potential difference, यही तो potential difference है, जितना भी maximum potential रहेगा, that much electron or that much charge will be developed. That's why they are result. इसके related अगला concept है, don't worry what exactly the statement it have. The result, the flow as a result of potential difference across the ends of the conductor. जितना ज्यादा potential रहेगा, जितनी ज्यादा एनर्जी रहेगी, उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पोटेंशियल। लाइक दैट वे विल डिस्कस इन ओम्स लॉ अबाउट दिस पॉइंट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट पार्ट. Next part is one numerical, basic numerical. Yesterday I have discussed about that. How much electron occupy in 1 coulomb charge? हम लोग ने डिस्कस किया था Q is equal to any. All we know चार्ज प्रॉपर्टी में हम लोग ने डिस्कस किया था Q is equal to any. बट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तुम्हारा एक चार्ज पार्टिकल बन रहा है, दैट इज योर आवर क्वेश्चन मीन. ठीक है, तुम्हारा Q मतलब एक बलून है एंड इनसाइड द बलून व्हाट नंबर ऑफ एयर पार्टिकल इट आर. वैसे ही बोल रहे हो Q is our what, a big charge in that number of electron what we have, that we are discussing here. So Q is equal to any. एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है? So Q is nothing but 1 and we have to calculate, and E is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19. That will be get divided by here 1 divided by 1.6 into 10 raised to minus 19. Minus 19 will be go up and it become 10 raised to plus 19, and if you divide the proper thing you get number of electron is what, 6.25 into 10 raised to 18. That was number of electron. Now student एक 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, फिर रिजॉइन होना. वैसे भी टाइम खत्म होने का 5 से 10 मिनट का ब्रेक, and we will rejoin again. Okay, सिर्फ 5 मिनट ब्रेक का, because the time almost. Okay sir. What? Sir इसी लिंक में ज्वाइन करना है या दूसरा लिंक? सेम लिंक आई हैव एक्चुअली, यही लिंक ज्वाइन कर देना. ठीक है. Okay.